a colorless, volatile, flammable liquid which is produced by natural fermentation process in which sugar is added, and basically it provides the intoxicating constituent in different drinks. Means maybe in it is added in wine, beers, spirits, and certain other drinks, and it also used as industrial solvents. Raise hands. Okay. It is if we take alcohol as a drug, it is the most common abused drug in the world. Individuals who use it in dangerous situations means if they use if they drink alcohol without other medicines or with in the combination or with other drugs, or they continue drinking in spite of having toxic effects of alcohol, this disorder is known as alcohol abuse disorder. Okay. Now, there is something about the pharmacokinetics of alcohol. Means it is taken through mostly through oral route. It can also be taken through IV route, but mostly it is taken as oral route. Alcohol is both soluble in water and fats. That is why it is rapidly absorbed from gastrointestinal tract, and it also crosses blood-brain barrier very easily. 20% of 20% is absorbed through the stomach, and remaining 80% it is absorbed through the upper intestine. Okay. Regarding its distribution, its volume of distribution is very high. The level of alcohol in all the fluid levels of the body is equal to the levels in the blood. Volume of distribution is approximately 0.5 to 0.7 liters per kg. Alcohol, it crosses the blood-brain barrier very easily, so it makes its effects in CNS. It also crosses the fetal barrier and placental barrier, and enters into the fetus and crosses the placental barrier very easily and produces its effects in the fetus. The It is the fetal alcohol syndrome (FAS) is caused. We'll discuss later in detail about fetal alcoholic syndrome. Fetal alcoholic syndrome occurs in 30 to 50% of all alcoholic mothers if they use alcohol during her pregnancy. Okay. Regarding its metabolism, alcohol, 95, more than 95% of alcohol is digested or metabolized by the enzyme which is known as alcohol dehydrogenase, ADH. ADH is anti-diuretic hormone, wo alag hai. This one is alcohol dehydrogenase is also known as ADH, but it is alcohol dehydrogenase. This enzyme is present in liver, in stomach, in lungs, and also in brain. So the metabolism can occur all over these places where alcohol dehydrogenase is present, but most abundantly it is present in liver. More than 85% metabolism occurs in liver, 15% in stomach, and less than 5% in brain and lungs. Okay, the metabolism is varied according to the gender. Means metabolism is more in men as compared to women, due to which blood alcohol concentration BSA is more in women as compared to men, because there is less enzyme
which is alcohol dehydrogenase, is less in women as compared to men. And regarding its metabolism, alcohol follows the zero order kinetics, means it is independent of dose and time. It is independent of its concentration and time. It is metabolized in fixed amount. In liver, it is metabolized uh, 7 to 10 grams per hour. The rate of metabolism in liver is about 7 grams to 10 grams per hour, which is equal to one drink of uh, that alcoholic person. Okay, this is the diagram. Ethanol, which is the pure form of alcohol, is basically converted into, metabolized into acetaldehyde by two processes. The first process is this alcohol dehydrogenase. The second process, we'll discuss it later. The second process is MEOS, microsomal ethanol oxidizing system. Okay, when alcohol is taken in low doses, it is metabolized through alcohol dehydrogenase. Ethanol is converted into acetaldehyde. It's a metabolite uh, which is important metabolite. It shows its effects on the body. We'll discuss it later. What are those effects? Then this acetaldehyde is further converted into acetic acid through acetaldehyde dehydrogenase. This acetic acid then converted into converted into water and carbon dioxide, and further that water and carbon dioxide can be used to form acetyl-CoA. Okay, this we are discussing only ethanol now. Ethanol can be metabolized by two steps. Number one is ADH, alcohol dehydrogenase. The other one is MEOS. Okay, this is MEOS, microsomal ethanol oxidizing system. It's a mixed function oxidase system. It uses NADPH as a cofactor in the metabolism of ethanol. It also consists primarily of cytochrome P450 enzyme. Means if alcohol is taken at lower doses, it is metabolized by alcohol dehydrogenase. But if the blood levels exceeds 100 milligram per deciliter, then MEOS will get activated. Okay. However, when large amount of ethanols are consumed, ADS system becomes saturated. Owing to depletion of that factor A, the system does not reply on, और फिर MEOS activate हो जाता है. What does MEOS do? Basically, MEOS microsomal ethanol oxidizing system uses NADPH rather than NADPH plus oxygen and convert into NADP positive plus water. There are two steps. जो आपको याद रखने वाली बात है कि there are two steps, not two steps. There are two processes, two phenomena from where ethanol can be converted into acetaldehyde. Okay. Now, what is acetaldehyde? Acetaldehyde is the main metabolite which is formed by the conversion of ethanol into acetaldehyde through alcohol dehydrogenase or MEOS. Accumulation of acetaldehyde causes very unpleasant effects. जो कि alcoholic एक person होता है उसको एक unpleasant effects आ रहे होते हैं, that effects are due to acetaldehyde. What are those unpleasant effects or reactions? That is facial flushing, nausea, vomiting, dizziness, and headache. These effects are due to acetaldehyde, and this is our main concern. हमारा focus acetaldehyde पे इसलिए होगा कि there is a drug which we use
in the treatment for the alcoholism. The drug is disulfiram. Disulfiram basically stops the conversion of acetaldehyde further into acetate. Means it increases the concentration of acetaldehyde in the blood. And if we are giving disulfiram to the patient and patient takes alcohol, means जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होंगे पेशेंट का तो उसी वक्त डायसल्फिरम देंगे. वो पहले साइकोलॉजिकली सेट होगा कि ठीक है जी मैं ड्रग्स ले रहा हूँ और मुझे अल्कोहल स्टॉप करना है. तो वी आर गिविंग हिम और हर डायसल्फिरम. जैसे वो डायसल्फिरम ले रहा होगा और फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ डायसल्फिरम वो जो है अल्कोहल कंज्यूम करेगा तो उसको ये अनप्लेजेंट इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे. दैट इज फेशियल फ्लशिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, और वो डिस्टर्बिंग होंगे उसके लिए. वो हल्का सा भी अल्कोहल लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डायसल्फिरम तो फौरन से उसको ये इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, whether he or she is chronic alcohol user or acute मतलब उसने स्टार्ट की है अल्कोहल, वो इनिशियल स्टेजेस में या क्रॉनिक अल्कोहल यूजर है. तो दोनों कंडीशंस में डायसल्फिरम की प्रेजेंस में ये इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे व्हिच आर टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल. ठीक है. तो इट इज गिवन एज द ड्रग, वन ऑफ द ड्रग which is used in the treatment of alcoholism. So there are certain other drugs which also produces effects like disulfiram. What are those drugs? You have studied in antimicrobials. Metronidazole is one of the drug which has effects same as disulfiram. Second generation cephalosporin, cefotitan is the one of the drug which also produces disulfiram effects in the presence of alcohol. And number third one is folic acid inhibitor, trimethoprim. ये तीनों drugs जो हैं disulfiram like effects produce करते हैं if they are taken in the alcoholic person. ठीक है. Now, pharmacodynamics of alcohol. Alcohol, when it is given as a drug, what effects it produces on the body systems. जो सबसे ज़्यादा produce करता है effects, that is on CNS. CNS पे ये बहुत ज़्यादा effect produce करता है. It varies with the concentration of alcohol. CNS पे जितने भी effects आएंगे वो vary करेंगे with the concentration blood alcohol concentration, BAC पे dependent. ठीक है जी. If the blood alcohol concentration is in between 50 to 100 milliliter, it only produces somewhat sedation, which is and slow reaction times of that patient. हल्का फुल्का जो है यूफोरिया भी cause करेगा and feeling of well-being भी cause करेगा if it is taken in this concentration. Means कि blood concentration जो भी है alcohol की if it is in between 50 to 100 milligram per deciliter, तो उसके effects जो आएंगे, number one will be sedation, number two will be feeling of well-being, खुशी सी महसूस होगी इसको, और एंजाइटी उसकी लॉस हो जाएगी जो भी जिसकी वजह से भी उसने अल्कोहल कंज्यूम की है, और थोड़ा यूफोरिक हो जाएगा. एंड मे बी स्लोअर रिएक्शन टाइम, जो उसका रिएक्शन टाइम होगा वो स्लो हो जाएगा कंपैरेटिव टू नॉर्मल. But if blood alcohol concentration is in between 100 to 200 milligram per deciliter, there will be impaired motor functions, there will be slurred speech, ataxia, and if he or she takes more alcohol and blood alcohol concentration reaches in between 200 to 300 milligram per deciliter, it may cause emesis and stupor in that patient. Emesis mean vomiting and stupor mean loss of consciousness in that patient. मतलब वो loss of concentration, not loss of consciousness, sorry, loss of concentration is known as stupor. तो अगर वो further consume करेगा alcohol and blood level reaches to 300 to 400 milligram per deciliter, it may cause coma, and more than 400 it may cause respiratory distress, depression, and may cause death in that patient. But
these effects are varied डिफरेंट होते हैं इन क्रॉनिक यूजर्स। क्रॉनिक यूजर्स के अंदर बॉडी ने टॉलरेट किया होता है उसको अल्कोहल को, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है टूवर्ड्स एल्डिहाइड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एंड मियोस सिस्टम्स, और उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट हो रही होती है। ठीक है, जब वो फास्ट हो रही होती है तो जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक पेशेंट्स हैं 400 या 400 से ज्यादा भी अगर उनकी ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन होगी तो दे विल बी लुक लाइक नॉर्मल पर्सन, दे मे बी लुक लाइक नॉर्मल पर्सन। ठीक है, जरूरी नहीं है लेकिन दे मे, लेकिन उनकी जो कंसंट्रेशन है वो 400 से ज्यादा है और वो क्रॉनिक यूजर्स हैं तो बिल्कुल नॉर्मल नजर आएंगे। बट इफ इट इज टेकन एज मतलब जो स्टार्ट करता है अल्कोहल कंज्यूमिंग और उसके जो लेवल्स यहाँ तक पहुंच जाए, दैट विल लीड्स टू डेथ, मे लीड्स टू कोमा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड डेथ। ओके जी, अब ये सीएनएस पे इफेक्ट करता कैसे है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक इसके कोई इफेक्ट्स अभी तक जो है अप्रूव्ड नहीं है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बट it basically suppresses the signal pathways in the nerves, okay, due to the blockage of inhibition of certain pumps or certain signaling pathways. Okay madam, please camera band kar le, mina hilla pe. Okay, the main focus, our main focus will be on two receptors, that is number one on glutamate and GABA system. Glutamate is the excitatory system of the body and GABA receptors performs the inhibitory functions. Basically alcohol inhibits the glutamate system, ठीक है, उसके उस ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को NMDA रिसेप्टर्स आते हैं, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स जो गैबा के रिसेप्टर्स होते हैं उनको इनहिबिट करता है, और गैबा ए रिसेप्टर्स जो होते हैं जो कि इनहिबिटरी इफेक्ट्स होता है जिनका, उनके लिए ये एज ए एगनिस्ट काम करता है, उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। ठीक है, इसलिए डिप्रेसिव इफेक्ट होता है सीएनएस पे of alcohol. It also affects on serotonin and dopamine system, but on a lesser amount. Okay, glutamate receptors पे अगर हम बात करें जो कि मेन excitatory system है हमारे CNS का, it inhibits the NMDA, N-methyl D-aspartate subtype of glutamate receptors. These receptors are very important in the sense of memory and स्पीच। ठीक है, जब इनके ऊपर इनहिबिशन होगा तो एक टर्म आती है अल्कोहलिक ब्लैकआउट्स, जिसके अंदर मेमोरी और स्पीच का ब्लैकआउट होता है। अल्कोहलिक पर्सन को जब वो ये रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा इनहिबिट हो जाते हैं, जब वो वापस जो है अपने इफेक्ट से बाहर आता है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ पर आ जाता है, तो उसको याद नहीं होता कि उसने क्या बोला था और उसकी उस वक्त की क्या मेमोरीज थी। ठीक है, तो उन मेमोरीज को जो ब्लैकआउट्स जो होते हैं उनको सप्रेस करने में जो रिसेप्टर्स यूज होते हैं, दैट इज NMDA receptors which are inhibited by alcohol. So there is a drug, acamprosate. It is an anti-craving drug to alcohol which is weak NMDA receptor agonist. इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। Okay, GABA receptors. Ethanol is GABA agonist, means जो GABA A receptors होते हैं उनके ऊपर ऐसे agonist काम करता है, उनके functions को enhance करता है, और जो भी है depressive जो है एक जो CNS के effects हैं उनको depress करता है, minimize करता है, उनको slow down कर देता है। ठीक है, other pharmacodynamic effects जो हैं, it also chronic use of alcohol changes the messenger RNA system of the neuron, जिसकी वजह से नई न्यूरॉन जो उसकी प्रोटीन्स वगैरह बनी होती हैं, न्यू प्रोटीन्स बनी होती हैं न्यूरॉन्स की, वो हॉल्ट हो जाती हैं, वो स्टॉप हो जाती हैं,
It also, which as a result acetylcholine, dopamine और opioid system receptors को इफेक्ट करता है, जो नए जो रिसेप्टर्स बनने पे इनको इफेक्ट करता है, उनको सप्रेस करता है, और जो है CNS के जो ओवरऑल CNS के फंक्शंस हैं that will get suppressed. Okay, alcohol effects may be different effects many different functions of the brain. It decreases the alertness, it decreases the motor function and intellectual abilities of the person. And if it is combined with other sedatives or other drugs, other opioids, then it increases the sedativeness of the alcohol. मोस्टली जो लोग अल्कोहल यूज करते हैं वो जैसे जिसका सेडेटिव इफेक्ट है. Okay, pharmacological effects on heart and smooth muscle. It depresses the functions of heart, means it depresses the contractility, and it also relax the smooth muscles, due to which जो है vasodilation cause होती है, और उस vasodilation की वजह से जो है body heat लूज होती है. ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली लूज हो जाता है, और विंटर कंडीशंस के अंदर अगर अल्कोहल कंज्यूम करेगा, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम होंगे, तो मार्क वेसोडाइलेशन होगी, उनका बॉडी टेम्परेचर शुरू में तो ज्यादा होगा, लेकिन वो एकदम से फॉल कर जाएगा और पेशेंट विल गो इनटू हाइपोथर्मिया. ठीक है, ओके, ये इफेक्ट्स हमने साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि विद द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड डिफरेंट लेवल्स पे कितने कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट्स आते हैं. साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स 50% ऑफ ऑल हाईवे क्राइम्स इन वेस्ट, हमारे पास तो कोई डेटा नहीं है, बट इन वेस्ट 50% ऑफ ऑल हाईवे क्राइम्स एंड एक्सीडेंट्स आर ड्यू टू अल्कोहल कंजप्शन. इसके कुछ ऑब्वियसली जो है साइड इफेक्ट्स के बावजूद इसके कुछ ना कुछ हेल्दी इफेक्ट्स हैं, एंड हेल्दी इफेक्ट्स इज अल्कोहल इज हाईली कैलोरिक बट हैज लिटिल न्यूट्रिशनल वैल्यू. और जो है इसके इफेक्ट्स में आता है कि इट इज टेकन ड्यू टू सम किसी भी एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से, या साइकोलॉजिकल कोई भी डिस्ट्रेस होती है जिसकी वजह से वो अल्कोहल लेता है, उस अल्कोहल की वजह से उसको जो है वेल बीइंग की फीलिंग आती है और यूफोरिक होता है, वो अपनी एंजाइटी भूल जाता है. ठीक है, टॉलरेंस, बॉडी टॉलरेट अल्कोहल में, मतलब जो इनिशियली जो ज्यादा अल्कोहल ले रहे होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर इट विल गो टुवर्ड्स द क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, तो बॉडी विल बी यूज्ड टू that alcohol consumption, or it will produce tolerance against that alcohol. Means the tolerance क्या होता है, basically it is the positive feedback mechanisms towards the metabolizing enzymes, which is ADH and MEOS system. उसके पर पॉजिटिव फीडबैक उनकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है, और वो ज्यादा फास्टली जो है मेटाबॉलिज्म हो जाता है अल्कोहल का, और अल्कोहल अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करता. Behavioral tolerance, brain adapts to amount of alcohol of drug present. A tolerant person can have blood alcohol concentration 2 times the amount of non-tolerant person. ठीक है जी. ओके, डिपेंडेंस बिल जरूरी है कि भाई अगर वो क्रॉनिक पर्सन है, क्रॉनिक अल्कोहल यूजर है, तो उसकी बॉडी डिपेंड कर जाती है ऑन अल्कोहल. मींस उसके देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टुवर्ड्स ग्लूटामेट एंड GABA. मींस कि बार बार अल्कोहल क्रॉनिक अल्कोहल यूज की वजह से ग्लूटामेट की जो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, उसके रिसेप्टर्स ज्यादा हो जाते हैं, उसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है, और GABA के रिसेप्टर्स और का अमाउंट कम हो जाता है.
तो अगर जैसे ही अल्कोहल, अगर वो पर्सन क्रॉनिक अल्कोहल यूजर है, वो अल्कोहल नहीं लेगा तो उसके अंदर ग्लूटामेट के इफेक्ट्स आने लग जाएंगे, क्योंकि ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स और उसका अमाउंट ज्यादा हो गया है। एंड व्हाट आर दोज इफेक्ट? वो एक्साइटेटरी इफेक्ट्स होंगे which are which presents their self as seizures. उसको fits और seizures due to glutamate over. Okay. Other effects of withdrawals includes hallucinations, psychomotor effects, agitations, and confusion. These all effects which are due to the dependence of alcohol on the patients are known as delirium tremens, DT. ठीक है? अगर आपको याद है कि वो व्हाट इज delirium tremens, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये उसके डिपेंडेंट अल्कोहल के डिपेंडेंस की वजह से जो भी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आते हैं, that condition is known as delirium tremens. ओके, ये साइड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं। जो एक मेजर साइड इफेक्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर लिवर। मींस क्योंकि वहाँ पे इसका मेटाबॉलिज्म होना है, उस मेटाबॉलिज्म की वजह से वहाँ पे एसिटाल्डिहाइड बनेगा, सर्टेन ऑक्सीडेटिव और जो है ऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होंगे, और सर्टेन टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू अल्कोहल, और वो लिवर को डैमेज करेंगे। ठीक है, अब वो लिवर को सबसे पहले तो हेल्दी लिवर है, इट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी लिवर। ठीक है, फैटी लिवर, अगर वो फिर भी फैटी लिवर पर्सन भी अल्कोहल दोबारा कंज्यूम करता रहता है क्रॉनिक स्टेजेस के अंदर, तो वो फैटी लिवर विल बी कन्वर्टेड इनटू सिरोटिक लिवर, लिवर सिरोसिस हो जाएगा, लिवर की फाइब्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, और अल्टीमेटली जो फाइब्रोटिक लिवर होगा दैट विल फर्दर डिटेरियोरेट और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाएगा, उसको ड्यू टू a reason that alcohol has immunosuppressive effects, and thus it produce tumor growth factors. ट्यूमर ग्रोथ जो है वो इसकी इंक्रीज हो जाएगी, और जो सेरोटिक लिवर होगा दैट विल कन्वर्टेड इनटू दैट विल बी कार्सिनोजेनिक, और वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा लिवर का जितना भी मैस होगा। ठीक है, other than liver it also produces pancreatitis, acute pancreatitis की जो reason है that number one reason of acute pancreatitis and number one reason of fatty liver is alcohol consumption. ठीक है, और in west also in west number one reason for chronic gastritis or peptic ulcer disease is also alcohol consumption. ठीक है जी, तो कोई भी सिनेरियो जिसमें एक्यूट पेंक्रेटाइटिस बताता है या जो है फैटी लिवर बताता है उस सिनेरियो के अंदर, और या एक्यूट गैस्ट्राइटिस या जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज के एक्यूट फेज बताता है, तो उसके अंदर द डीडीज के अंदर जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर आपके अल्कोहल यूज विल बी ऑन नंबर 1. ठीक है, ओके, द metabolizing of alcohol produce free radicals causing cancer, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. ओके, if it is taken by pregnant women, it produces teratogenic effects. What are those teratogenic effects? It is known as fetal alcoholic syndromes. Fetal alcoholic syndrome is accountable for 3 to 5 birth defects in 1000 females in West. Okay, what is fetal alcoholic syndrome? It is basically presents with low intelligence, mental retardation and behavioral abnormalities. और उसके स्पेसिफिक फेस fetal alcoholic syndrome का जो पेशेंट होता है, जो fetus प्रोड्यूस होगा या फिर वो बड़ा होकर एक एडोलेसेंट एज पे तक पहुंचेगा, तो उसके स्पेसिफिक जो हैं फीचर्स होंगे, that features are given in this diagram. आप लोग डिटेल्स में देख लीजिएगा अपनी बॉडी में. ठीक है, और फेशियल एबनॉर्मेलिटीज डिफरेंट होंगी. एडोलेसेंट एज पे जब वो fetal alcoholic syndrome वाला पेशेंट पहुंचेगा, then that will engage in antisocial behavior. These persons are slow learners और उनके अंदर congenital heart defects होते हैं. ठीक है,
तो ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर ये फीचर्स बताए गए हों, फेशियल एबनॉर्मेलिटीज बताई गई हों और हिस्ट्री दी हो कि भाई उसकी मदर ने जो है अल्कोहल कंज्यूम किया था ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर, तो फिर आप उसके अंदर डायग्नोस करेंगे दैट सिनेरियो एज ए फेटल अल्कोहलिक सिंड्रोम। ठीक है, ओके। 1950 से पहले अल्कोहलिज्म को एज ए इलनेस नहीं मानते थे। इन 1950 अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन रिकॉग्नाइजेस सिंड्रोम एज ए अल्कोहलिज्म एज ए इलनेस, और 1970 के बाद जो है इट इज रीडिफाइंड एज क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एंड पोटेंशियली फेटल डिजीज। ठीक है, तो alcoholism is basically it is used as a self medication। कोई भी इसको प्रिस्क्राइब नहीं करता। बहुत कम ऐसी कंडीशन है जिसमें अल्कोहल को प्रिस्क्राइब किया जाता हो। पहले ऐसी कंडीशंस थी बिफोर द इन्वेंशन ऑफ सर्टेन टोकोलिटिक्स, जो है ये प्री मैच्योर लेबर के अंदर जो है प्रिस्क्राइब किया जाता था ड्यू टू इट्स इफेक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स पे इसके इफेक्ट होते हैं कि ये स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कराता है। अगर प्री मैच्योर लेबर होता था पहले तो उसको अल्कोहल दिया जाता था, प्रिस्क्राइब किया जाता था टू रिलैक्स द यूट्राइन मसल्स एंड प्रिवेंट द प्री मैच्योर लेबर। लेकिन बट नॉट नाउअडेज, जबकि अदर सेफर टोकोलिटिक्स वगैरह आ गई हैं। ठीक है, तो alcoholism is basically used as a self medication for psychological disorders। कोई भी उसमें एंजाइटी होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तो वो अल्कोहल की तरफ जाता है, अल्कोहल कंजप्शन की तरफ पेशेंट जाता है। ठीक है, 30 to 50% of patient which uses alcohol they meets the criteria for major depression। ठीक है, 33% have coexisting anxiety disorders, antisocial personalities होती हैं, और ये जो लोग होते हैं more than 30% of alcoholic patients are also addicted to other drugs। इसलिए जो भी है अल्कोहलिज्म की जो मैनेजमेंट इसकी ट्रीटमेंट आएगी, इसकी ट्रीटमेंट एक स्पेसिफिक नहीं होगी कि फार्माकोलॉजिकल अपने ड्रग्स दी और उसने अल्कोहलिज्म को एज ए एंटीडोट इनहिबिट किया और वो पेशेंट ठीक हो गया। इसकी प्रॉपर एक मैनेजमेंट होगी जो कि जिसके अंदर स्टार्ट करेंगे उसके इफेक्ट से और फिर उसकी कॉज से कि अल्कोहलिज्म की क्या कॉज बनती है, और थर्ड स्टेप पे जाकर आता है कि उसके ऐसे ड्रग्स फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स दें जिसकी वजह से उसके इफेक्ट्स स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, तो जो डिजीज मैनेजमेंट आएगी, हम ज्यादातर जो डिजीज मैनेजमेंट करते हैं दैट इज ऑन डिपेंडेंट on those patient which are chronic dependent on alcohol। उससे पहले इतनी ज्यादा हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते। उससे पहले की जो स्टेज है दैट इज अर्ली डिपेंडेंस, वो हम सिर्फ उसकी बिहेवियरल थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के थ्रू उसकी मैनेजमेंट करते हैं। और बाकी उससे पहले वाले जो पेशेंट जो लो अमाउंट में अल्कोहल ले रहे होते हैं उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं बाय काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल थेरेपी। लेकिन हमने जो बेसिक हमारा एम है दैट इज ऑन दोज पेशेंट व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल एंड उसके अंदर हमने सारी मैनेजमेंट करनी है। मैनेजमेंट क्या करनी है? मैनेजमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम दी के उसके ऐसे ड्रग्स दिए जाएं, पहले तो उसकी जो साइड इफेक्ट्स आए अल्कोहल की वजह से उन साइड इफेक्ट्स को दूर करना है। उसके बाद उसकी जितने भी एंजाइटी या डिप्रेशन है जिसकी वजह से उसने अल्कोहल स्टार्ट किया था, उस एंजाइटी डिप्रेशन को रूल आउट करना है, उसको दूर करना है। और उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स देने हैं which reverses those conditions which are produced by alcohol। टाइम कम है, हम जरा तेज चलेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम एबीसी। एक पेशेंट आया है जो कि अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोमाटोस पेशेंट है, इमरजेंसी में रिसीव हुआ है, तो उसकी मैनेजमेंट वहां से स्टार्ट करेंगे एबीसी। ठीक है, एयरवे चेक करेंगे, उसका ब्रीदिंग चेक करेंगे, उसकी सर्कुलेशन चेक करेंगे। फिर आता है DEFG, डोंट एवर फॉरगेट ग्लूकोज। फिर उसका ग्लूकोज चेक करेंगे। ABCDEFG, जी तक याद रखना है। ABC एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। DEFG डोंट एवर फॉरगेट, DEF से और G से ग्लूकोज। उसका हाइपोग्लाइसीमिया कॉज चेक करेंगे क्योंकि जो है हाई ब्लड अल्कोहल लेवल्स की वजह से
हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है, ठीक है। तो उस चीज को रूल आउट करने के बाद जो है हमारे पास जो उसके इफेक्ट्स आएंगे, मींस उसको सीजर्स वगैरह आ रहे होंगे, अगर उसके अल्कोहल हम रोकेंगे, अल्कोहल कंजप्शन उसके रोकेंगे तो उसके इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि विथड्रॉल इफेक्ट्स होंगे। दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सीजर्स, कन्वल्जन्स और वॉमिटिंग and hallucinations, severe headache, and will give pharmacological drugs like benzodiazepines. जिस हमारी प्रेफरेंस होगी कि लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स देंगे, जिसके अंदर डायजिपाम और डायजिपॉक्साइड आएगी, ठीक है। दीज डायजिपाम एंड क्लोरीनेटेड डायजिपाम आर दी लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स। बट इसके इफेक्ट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, लॉन्ग टर्म चलते हैं, बट जो है इसके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा हैं। मींस अगर लिवर कॉम्प्रोमाइज है, जो कि यूजुअली अल्कोहलिक पेशेंट के अंदर होता है, उस कंडीशन में ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं बेंजोडाइजेपिन, लॉन्ग एक्टिंग जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं, जो कि लिवर को और ज्यादा डैमेज करते हैं। इसलिए अगर कोई पेशेंट जिसके अंदर लिवर भी कॉम्प्रोमाइज है, तो उस कंडीशन के अंदर हम लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स यूज नहीं करेंगे, फिर हम शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स यूज करेंगे, दैट इज लोराज़ेपम एंड ऑक्सीजेपम। ओके, these are given to control seizures, to control convulsions or to give the sedative effect, जो कि हमने अल्कोहल को स्टॉप करने की वजह से उसके अंदर withdrawal effects आए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उसके सीजर्स को और convulsions को कंट्रोल करने के लिए बेंजोडाइजेपिन्स दिए हैं। This will improve the withdrawal symptoms, it prevents the seizures and other drug toxicities or delirium tremens के जो effects आएंगे वो भी स्टॉप कर देगा। और substituting this long acting difference of the withdrawals. अच्छा, the long acting benzodiazepines are good as compared to other drugs, but they are not given in the hepatocompromised patient, ठीक है। अब हम उसके अंदर ऐसे इफेक्ट्स देंगे, जब उसके ये सारे के सारे जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, विड्रॉल इफेक्ट्स, जब ये खत्म हो जाएंगे तो पेशेंट कुछ स्टेबल होगा। जब स्टेबल होगा तो मे बी इट विल गो टूवर्ड्स, अगर उसकी साइकोलॉजिकल थेरेपी नहीं की गई प्रॉपरली, एंटीसाइकोटिक्स उसको ड्रग्स नहीं दिए गए, तो वो जाएगा टूवर्ड्स कि भाई मैं अल्कोहल दोबारा कंज्यूम करूं, तो उसको हम डायसल्फिरम इस स्टेज पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब डायसल्फिरम का आपने पढ़ लिया था कि इन द प्रेजेंस ऑफ डायसल्फिरम, जैसे वो अल्कोहल लेगा तो उसके अंदर वो इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, फेशियल फ्लशिंग के, हेलुसिनेशंस के, हेडेक के, वॉमिटिंग के, ठीक है। जब डायसल्फिरम उसको स्टार्ट करा देंगे, अगर उसने लिया तो उसको फौरन से साइड इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और वो फौरन से जो है अल्कोहल दोबारा स्टॉप कर देगा। It is basically alcohol sensitizing agent, ठीक है। It is used to prevent the patient from drinking by producing an aversive reaction when consuming alcohol, ठीक है जी। तो डायसल्फिरम क्या करता है, उसके इफेक्ट्स हम आगे भी बहुत डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इट एक्यूमुलेट्स द एसिटाल्डिहाइड। उस एसिटाल्डिहाइड की वजह से एक थ्रॉबिंग, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग और चेस्ट पेन, हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि अनबियरेबल होंगी उस पेशेंट के लिए जो कि अल्कोहल ले रहा है, और वो फौरन से अल्कोहल को दोबारा वहीं पे रोक देगा, ठीक है। अब जब विड्रॉल इफेक्ट्स आ रहे होंगे, जो है देयर इज अ ड्रग कॉल्ड नैल्ट्रेक्सोन, ठीक है। ये ओपियोइड म्योरिसेप्टर्स जो होते हैं ओपियोइड के, उनकी एगोनिस्ट है, ठीक है, सॉरी उनकी एंटेगनिस्ट है, ठीक है। जब हम उसके ऊपर ये देंगे, नैल्ट्रेक्सोन देंगे, एक हाइपोथेसिस है कि जो अल्कोहल, अभी तक वो रिसेप्टर्स आइडेंटिफाई नहीं हुए कि अल्कोहल है जिनके ऊपर जाके एक्ट करना है, ठीक है, बट दिस इज अ हाइपोथेसिस के अल्कोहल म्यू रिसेप्टर्स पे जाके भी एक्ट करता है। उसका हाइपोथेसिस को उसने फर्दर जो है उसने एक्सप्लेन इस तरह किया है कि बाय गिविंग नैल्ट्रेक्सोन जो है ओपियोइड रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, और उस ब्लॉकेज की वजह से जो इफेक्ट्स आते हैं अल्कोहल के और ओपियोइड्स के, वो दोनों स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, उसको क्रेविंग नहीं आती नैल्ट्रेक्सोन लेने के बाद, जो है अल्कोहल की क्रेविंग नहीं आती, क्योंकि वो रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई कर जाती है, नैल्ट्रेक्सोन उनको एंटेगनाइज कर जाती है,
उनको मिनिमाइज करती है, उनके अमाउंट को कम कर देती है म्यूरोरेसेप्टर्स को. There is other drugs, naltrexone is approved by FDA and it is used in states, but in European countries there is acamprosate which is used in naltrexone की जगह जो यूज होती है. आगे हम डिटेल में इन ड्रग्स के जो हैं वो इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स यूज करेंगे. ठीक है, ओके, उसको भी छोड़, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, डिप्रेशन इज ए कोमॉर्बिड विद अल्कोहल डिपेंडेंसी. डिप्रेशन को अगर रूल आउट नहीं किया तो वो पेशेंट जो है दोबारा जाएगा टूवर्ड्स अल्कोहल कंजप्शन, और उसके लिए हम डोपामिन और सेरोटोनिन के जो भी हैं डेरिवेटिव्स वो यूज करेंगे फॉर एंटी साइकोटिक पर्पसेस. और उसके अंदर जो हम स्पेसिफिक ग्रुप लेंगे दैट विल बी SSRIs. डिप्रेशंस जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर SSRIs को डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा. बट आपको सिर्फ यहाँ पे पता होना चाहिए कि फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहलिक पर्सन SSRIs आर ऑल्सो यूज्ड एज ए एंटीसाइकोटिक ड्रग. ठीक है, अब हम स्पेसिफिक आते हैं वो जो ड्रग्स हमने यूज किए, नैल्ट्रेक्सोन, डायसल्फिरैम और एक्रोसेट. Naltrexone is given once daily as a 15 mg capsule or tablet. It is given for the duration of 12 to 16 weeks ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके रिसेप्टर्स कम होते जाएं और ऑक्यूपाई होते जाएं और डिपेंडेंस जो है अल्कोहल पे वो खत्म होता जाए. इसकी एक और फॉर्मुलेशन है parenteral formulation which is given as IM. It is given after every 4 weeks. Effects जो साइड इफेक्ट्स हैं दैट इज हेपेटोटॉक्सिसिटी. डायसल्फिरैम और नैल्ट्रेक्सोन जो है इसको कभी भी कॉम्बिनेशन में नहीं देंगे क्योंकि दोनों हेपेटिक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और दीज इफ दे आर गिवन इन कॉम्बिनेशन तो उस जो लिवर है उसके लिए काफी डेंजरस कंडीशंस प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, ओके ओके वेल क्वेश्चन इसके अंदर एक प्रिकॉशन जो देखना है. इट कॉजेज एक्यूट विड्रॉल सिम्पटम्स इन ओपियोइड डिपेंडेंट पेशेंट्स. सो पेशेंट्स व्हिच आर ओपियोइड फ्री, पेशेंट मस्ट बी ओपियोइड फ्री. जो कि अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं वो दूसरी ड्रग्स भी ले रहे होते हैं, ओपियोइड्स ले रहे होते हैं. पेशेंट मस्ट बी ओपियोइड फ्री बिफोर. Sir, sorry to interrupt, sir. We are done with the time for the lecture. Okay, can I have only 2 minutes? ये complete हो जाएगा. Sir, we have to start the next lecture and. Okay, thank you very much. ठीक है जी. Thank you, sir.